us. You may not be seated right now. You may all stand again once again. Hallelujah. We're all in the presence of the Lord. Amen. Where the presence of the Lord is, there's freedom. Hallelujah. God is good. And all the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord. Amen. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, well, I will sing of the goodness of God. Say one more time, I love you, Lord. I love you, Lord. Your mercy never fails. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, well, I will sing of the goodness of God. Shall we all say together, all my life? All my life you have been faithful. Oh yes, you are, Lord God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, well, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice, oh yes we do, Lord, 'cause you have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other, oh yes you are. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the the very beginning. I love you. I love you, Lord. Your mercy never fails. But for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. Oh Lord God, from the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
of our heart will say, see, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, well, I will sing of the goodness of God. Jeevan Bhar tu wafadar hai, oh Jeevan Bhar raha tu kitna bhala, har ek saans ki taakat se gaon mein tere bhalai. I will sing, well, I will sing of the goodness of God. I will sing, say, I will sing of the goodness of God. Let's give the Lord a big hand of praise, amen. He is good. Hallelujah. Praise the name of the Lord once again. एक बार फिर से प्रभु के नाम को महिमा मिले। What a beautiful thing to be here. और कितनी अच्छी बात है कि हम इस जगह पे हैं। For a long, long time we have not met. और काफ़ी लंबा समय से मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। I thank God that I could see you all, the pastors and the leaders, मैं the deacons, deaconesses. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को मौका दिया है आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, सारे पास्टर, एल्डर, डिकन, डिकनेसेस को। And thank God that we are still alive through that COVID-19. और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम जीवित हैं, उस जबकि कोविड-19 के दौरान भी प्रभु हमारे साथ था। And the devil could not take our lives away. और शैतान हमारे जीवन को छीन नहीं पाया, Though he has tried, जबकि उसने कोशिश तो किया है, but God is God. लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। We are still here. और आज के दिन हम इस जगह So पे we हैं, praise His name. इसी कारण प्रभु के नाम को हम Amen, बड़ाई करते hallelujah. हैं। हालेलुया। This is a time of fellowship. और ये जो एक संगति का समय है, This is a time of interaction. और जैसे कि एक दूसरे के साथ मिलने का समय है, This is a time that as leaders we have come together. और ये ऐसा समय है जो सारे लीडर इकट्ठा आए हैं जगह पे, We could learn from each other. और एक दूसरे से हम प्रेम को ले सकते हैं, दे सकते हैं। I could learn from you, you could learn from me, you can learn from each other. और एक दूसरे से हम सीख भी सकते हैं, जैसे कि आप मुझसे सीखते हैं, मैं आपसे सीखूंगा। And this is also a time where we can refresh our mind, our relationship with God, our commitment to the cause that God has called us. और ये ऐसा समय है जो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से हम अपना जीवन को और तरोताजा कर सकते हैं परमेश्वर के साथ में। And I also want to acknowledge the presence of my dear daughters from Mohali. They'll be sharing the word in the coming days. Even my dear Pastor Roy Thomas from Bangalore, his wife. It is, when I go to Bangalore, that's the church I would go. And parents, if you have children in Bangalore, tell them to go to that church. High praise church. So, tomorrow, Pastor Roy will share the word of God in the evening. और And then day after tomorrow, Pastor Manisha. And then we have other men of God who will share the word of God in the coming days. और कल शाम को जो पास्टर रॉय जगह पे वचन देंगे, उसके बाद अगला दिन पास्टर मनीषा और भी परमेश्वर के जन इस जगह पे है। Okay, before we go to the word, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले I have a simple question. मेरे पास में एक साधारण सवाल है, Very simple question. एकदम साधारण सवाल है। Yes, we are all leaders. हाँ, हम सभी एक कहता है एक लीडर है, अगुवाई है। Yes, we are all shepherds. हम सभी लोग जो एक चरवाहा है, We lead the flock of God. हम परमेश्वर के झुंडों को देखभाल करते हैं। We shepherd the sheep of God. परमेश्वर के भेड़ बकरियों को हम देखभाल करते हैं। But the question is, सवाल ये है, who leads us? हमें कौन अगुवाई करता है, Who shepherds us? और हमें कौन ले चलता है। Yes, we are leaders. हाँ, हम सभी लोग तो लीडर तो हैं, Yes, we are shepherds. हम सभी लोग चरवाहा तो हैं,
But who leads us? लेकिन हमें कौन लीड करता है, कौन ले चलता है हमें, Who shepherds us? हमें कौन चराता है? That is the second answer. ये दूसरा जवाब है। The first answer is पहला जवाब ये है the shepherds shepherd the shepherds. कि चरवा जो है चरवाई को खाना भेड़ों को चढ़ाता है। The shepherds shepherd the shepherds. चरवा जो है चरवा को चढ़ाता है। That's why we are here. इसी कारण हम इस जगह पे हैं, To learn from each other. एक दूसरे से सीखने के लिए। When you go to the places where people they have sheep and cattle, when you see those people when they have taken the sheep and the cattle and the livestock, to the field to eat the grasses, whatever, you will see the shepherds, they will come together. They will chat, they will talk, they will discuss about where to get the new land tomorrow, maybe by the next week. How do you do with your sheep? How do you do with your cattle? That's why they talk, they chat. That's why I told you, yes, we shepherd the sheep of God, but who shepherds us? आप जबकि एक ऐसे The जगह में shepherds. We are the shepherds, so we shepherd each other. आप जबकि कई जगहों में जाते देखते बहुत सारे ऐसे चरवा जो है भेड़ बकरियों को चढ़ा के अलग अलग जगहों में जाते हैं। आप जबकि भेड़ बकरी चढ़ता है उसमें आप देखते हो कि चरवा भी साथ में रहता है। और उसी तरह से हमने कहा कि हम एक चरवा है, चरवा को कौन चढ़ाता है? चरवा चढ़ाते हैं। इसी तरह से हम इस जगह पे आए हैं एक दूसरे को सीखने के लिए और एक दूसरे से जानने के लिए। And the second answer, और दूसरा जवाब ये है you have just heard. जो अभी आपने सुना है, We are going to learn from each other. हाँ, जबकि हम एक दूसरे से हम सीखेंगे। But remember, the very important person who will teach us in this leaders meeting is the chief shepherd, Jesus Christ. तो इस बात को याद कीजिए। हाँ, हम एक जगह पे एक मीटिंग में आए हैं और हम सब चरवा हैं और हमें सिखाने के सबसे बड़ा चरवा जो है वो यीशु मसीह है जो हमें सिखाएगा। Let him disciple us. वो हमें कहता है कि चेला बनाता है। Let him discipline us. वो हमें कहता है कि डिसिप्लिन करने दे, अनुशासन में लाने दीजिए। Let him correct us. वो हमें सुधारने दीजिए। Let him encourage us. वो हमें साहस दे, हमें प्रोत्साहन दे। And let him point even our mistakes. और यीशु मसीह हमारे कमजोरियों को भी दिखाए ताकि हम सुधार सकें। Because he is the only perfect shepherd. केवल यीशु मसीह एक जो कहता है परफेक्ट कहता है कि चरवा है, Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। Therefore, it is my prayer इसी कारण मेरा ये प्रेयर है that as we are here in these 4 days, और जबकि इन 4 दिनों की मीटिंग में हम हैं, I pray that all of us we will meet with God afresh. और मेरा यही प्रार्थना है कि इन 4 दिनों के दौरान जो कि प्रभु से हम नए तरीका से प्रभु की उपस्थिति में नया जोश से हम भरेंगे अपने आप को। I pray that all of us we will see God in a new way, like Moses saw God in the burning bush. और मेरा यही विनती है कि परमेश्वर के आगे प्रेयर है कि ताकि हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में एक नया तरीका से परमेश्वर से मुलाकात करें, जिस तरह मूसा ने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से मुलाकात किया। This is a leader meeting. जबकि ये कहता है एक लीडर्स लोगों का मीटिंग है। The word leaders means और लीडर्स का जो मतलब है those who lead. इसका अर्थ है जो अगुवाई करता है। The word leaders means और लीडर का जो सब मतलब है those who have followers behind them. और जो अगुवाई करता है, इसका मतलब जिसके पीछे जो अगुवा जो है किसी को अगर अगुवाई करता हो। Therefore, because we are leaders, इसी कारण जबकि हम एक अगुवा हैं, we have to be very, very strong. इसी वजह से हम बहुत ज्यादा हमें मजबूत होना होगा, Especially in this generation. और खास करके आज की पीढ़ी में। Why? Because strong leaders will produce strong churches. इसलिए हमें मजबूत होना है। कारण यह है कि कहता मजबूत जो है अगुवा है वो मजबूत कहता है कि चर्च को बनाएगा। Weak leaders will produce weak churches. और कमजोर वाला लीडर जो है याद करना कि एकदम कमजोर कलीसिया को बनाएगा वो।
So we have to be strong. इसी वजह से हमें मजबूत होना होगा। We cannot say, this is my life. हम ये नहीं बोल सकते ये मेरा जीवन है कि मेरा जीवन है। As leaders, we cannot say, I can do whatever I want to do. और लीडर होने के नाते हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा जीवन है जैसे मर्जी वैसे जीऊं। No, we cannot do that. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते आप। Why? Because whatever we do, it will not affect only you, it will not affect only me, it will affect those who follow us. क्योंकि जब कभी हम ये कहकर हम जीवन जिएंगे, मेरा जीवन जैसे मर्जी वैसे जीऊंगा, तो केवल उस समय याद करना केवल आपको ही दिक्कत होगा, आपको ही कदा प्रॉब्लम में डालेगा, ऐसा नहीं, बल्कि आने वाला पीढ़ी या जो आपके पीछे चल रहे हैं उनको भी तकलीफ होगा। And thank God we have leaders here. हम धन्यवाद करते हैं सभी लोग लीडर्स You की जगह पे are हैं। all leaders. हम सभी लोग इस जगह पे लीडर हैं। Just imagine और मान लीजिए a church without leaders. कलीसिया बिना अगुवाई का What will happen? क्या होगा? बिना लीडर का कलीसिया कैसे होगा? Just imagine और मान लीजिए our nation India has no leaders. मान लीजिए हमारे भारत देश में कोई कहता है कि नेता ही ना होगा, लीडर ही नहीं No है, president, no prime minister, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, no leaders. कोई लीडर नहीं है। It'll be a confusion. उसमें क्या बहुत ज्यादा गड़बड़ी पैदा होगा। Are you with me? समझ में आ रहा है आपको? So Pastor Danny had quoted from the Bible when he opened the meeting. और जिसने पास्टर डेनी जिसमें मीटिंग को शुरुआत किया, बाइबल से उसने वचन को बोला है From the book of Acts. प्रेरितों की किताब से, We have not chosen by ourselves to be leaders, हमने अपने आप को अगुवाई बनाने के लिए नहीं चुना है, लीडर बनने के लिए नहीं चुना है, but it was the Holy Spirit ये पवित्र आत्मा ने किया है who has chosen us. और जिसने हमें चुना है। Therefore, Paul said, take care. इसी कारण पौलुस ने ये कहा कि इसी वजह से हमें कहता उन झुंडों को देखभाल करना है। First, take care for yourselves. ये बोला है सबसे पहले तो अपने चौकसी करने के लिए अपने आप को ध्यान देना है, And then for the church of God. उसके बाद में विश्वासियों को। As I mentioned just now, जैसे कि अभी अभी मैंने बोला है आपको, just imagine मान लीजिए a church without leaders. कलीसिया बिना अगुवाई का या बिना लीडर का। Do you want to go to that church? क्या आप ऐसे कलीसिया में जाने के लिए आपको अच्छा लगेगा? Tell me. आप ऐसे कलीसिया में जाना चाहते जिस कलीसिया में कोई लीडर ही ना हो? Do you want to be a citizen of the country where there is no leader? आप ऐसा कहता देश का No नागरिक government? बनना चाहते हैं जिस No government? ऐसा देश का नागरिक बनना चाहते जिसमें कोई किसी प्रकार का कहता है कानून ना हो? I don't want to be a member of that church. मैं ऐसे कलीसिया का सदस्य नहीं बनना चाहता। There was a time और एक ऐसा समय था in the history of the Israelites, और इजराइल के इतिहास में, in the book of Judges, न्याय की किताब में, there was a time और एक ऐसा समय था where there was no leaders. ऐसा समय था जो इजरायलियों के उन लोगों के समय में कोई ऐसा उनका कोई नेता ही नहीं था, लीडर ही नहीं था। And you know what happened? और अब जानते फिर क्या हुआ? Let me read from the Bible. चलिए मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ता हूँ, Judges 21 verse 25. है ना, न्याय की किताब 21 अध्याय का 25वां वचन। Listen what the Bible says. ये बाइबल कहता है, In those days there was no king, no leader in Israel. उन दिनों में And the outcome is every man did what was right in his own eyes. उन दिनों में इजराइल में कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक लगता था इसी का वो करते थे। That means in Hindi, I don't know proper Hindi, सबका खुशी है, सब खुशी, सब खुशी, सब खुशी. Do whatever you want. है ना। उन दिनों में जो इजराइल कोई नेता नहीं था, राजा नहीं था, जिसको जो मर्जी वो करता था वो। I don't want to be a member of that church. मैं ऐसा कलीसिया का सदस्य नहीं बनना चाहता। So, leaders, we play a very, very important role. इसी कारण कहना चाहता हूँ हर एक लीडर जो है बहुत उसका कहता जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ा जिम्मेदारी है In shaping the nations, in shaping the church. कहता है कि हमारे देश का नेता हो, चाहे कलीसिया का नेता हो, जो कि कलीसिया को देखभाल करता है। In the Old Testament, और पुराने नियम में हम देखें, we see in the history of the Israelites as a nation, और इजराइल के इतिहास में अगर हम देखते हैं, when a wicked king would become king of Israel, he would turn the whole nation to turn away from God. और कहता है अगर ऐसा कोई नेता आता है इजराइल का जो कहता है बुरा है परमेश्वर से क्या होता है, लोगों को सबको कहता है प्रभु से दूर कर देता वो। But then after some time, a
very godly king would come to the throne, and you will see the whole nation would be godly, and the whole nation would turn to God. और कुछ समय के बाद मान लीजिए कहता है कि वो ऐसा नेता आता है, ऐसा लीडर आता है जो प्रभु का भय मानने वाला, सभी सारा देश को जो है प्रभु की ओर ले आता है। Why? Because it depends on the leaders. क्यों? कारण क्या है कि ये सब कुछ जो है लीडर के ऊपर में कहता है कि निर्भर है। Therefore, as I said, I say again, as leaders, we cannot just say, it's my life, I can do whatever I want, who will correct me, who will speak to me? No, 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 no. We have to be very careful, because whatever we do, it will not affect only us, it will affect those who follow us. क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बोला है, फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अगर लीडर होने के नाते, अगुवाई होने के नाते हम ये नहीं बोल सकते मेरा जीवन है, मेरा मर्जी, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे जीऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। केवल उस समय याद करना कि कोई भी गड़बड़ी के जीवन जिया तो केवल हमारे जीवन में असर करेगा, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे पीछे पीछे जो चल रहे हैं, जिसको हमने चेला बनाया हुआ, उनके जीवन में भी बहुत ज्यादा नुकसान का कारण बनेगा। Therefore, I like Apostle Paul. इसी कारण मैं अपोस्तल पौल को जो बहुत पसंद करता हूँ। One time he said to the people, और एक बार उसने लोगों से कहा, the Christian in Corinth, कोरिन्थियों के कुछ कलीसिया को कहा, he said, follow me उसने कहा मेरे पीछे चलो, as I follow Christ. उसने कहा कि जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं वैसे तुम मेरे पीछे चलो। Therefore, we can never lead a church, we can never lead any person unless we ourselves, we follow someone. And who is that someone? Paul said, I follow Christ. इसी कारण मैं कहना चाहता हूं कि हम जो है किसी के पीछे पीछे ऐसा नहीं चल सकते जब तक कि वो कहता वो व्यक्ति जो है प्रभु के पीछे चलने वाला ना हो। जिस तरह पौलुस से कहता है कोरिन्थियों के विश्वासियों से कि मेरे पीछे चलो जैसे कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। Why Paul said these words? किस लिए क्या कारण था कि पौलुस ने इन बातों को बोला है? Because at that time Jesus has gone up to heaven. कारण ये था कि उस समय जो यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया था। Therefore, the Christians, they could not see Jesus anymore. उन दिनों में कहता है मसीह लोग जो है यीशु मसीह को देख नहीं पाते थे। But what they can see is their leader. उन दिनों में मसीह लोग क्या क्रिश्चियन लोग किसको देखते? केवल लीडर लोगों को देखते थे। Therefore, Paul said, इसी कारण पौलुस ने कहा follow me. मेरे पीछे चलो। Even I myself, I follow Christ. वो कहता ये भी कहता है कि मैं जैसे कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। Leaders, सारे लीडर्स लोग let Christ be our focus. चलिए कि यीशु मसीह जो क्या हमारा जो कहता है कि मुख्य कारण हो उसके पीछे चलने का। Let Christ be our role model. और यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना हो। Let us follow Christ. चलिए हम यीशु के पीछे चले So that we can tell others, follow me. ताकि हम दूसरे को कह सके कि मेरे पीछे चलो। This is Jesus. मान लीजिए ये यीशु है, I follow him. अब मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूं। I can tell others, follow me. मैं दूसरों को भी कह I'm सकता मेरे following पीछे चलो this man. क्योंकि मैं इसके पीछे चल रहा हूं। Are you with me, church? कलीसिया मेरे साथ हैं? Are you with me, leaders? अब सारे लीडर्स मेरे साथ हो। Very quickly, let us see. चलिए हम जल्द से जल्द देखेंगे परमेश्वर के वचन से Who is this Jesus? ये यीशु कौन है Whom Paul said, जिसको पौलुस कहता है follow me मेरे पीछे चलो as I follow Christ. जैसे कि मैं मसीह के पीछे चलता हूं। Yes, we all know Christ is the Son of God. हाँ हम सभी जानते हैं यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है। Yes, we all know Christ died on the cross. और हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। But let us see चलिए हम देखेंगे a little detail about Jesus. चलिए कुछ गहराई में हम देखेंगे Let यीशु us मसीह के focus बारे our में। mind on Jesus. चलिए आज के दिन हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर हो। There are many people, many pastors, many leaders today, especially in the European countries in the West, they don't follow Jesus. They follow prosperity. They क्योंकि follow money. They follow so many things of this world. Therefore, when you see them, when you even listen to them, there's no solid word. Only prosperity. Prosperity. As leaders, let us take our focus from prosperity, from fame and name. Let us focus on Jesus.
चलिए मैं जैसे कि मैं आपने आपको बोला, जैसा पौलुस भी कहता है, मेरे पीछे चलो जैसे कि मैंने यीशु मसीह के पीछे चला। आज के दिन ऐसा बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे पास्टर्स हैं, कहता है उन लोगों का जो मुख्य कारण भी था यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए केवल जो धन संपत्ति को कमाना, नाम कमाना है ना, इस तरह से। चलिए हम उन सारी चीज़ों को दूर रखें, रुपया पैसा धन संपत्ति को दूर रखकर ये यीशु मसीह के पीछे चले, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। Because we are going to sit for another 2 hours, क्योंकि हम और 2 घंटा इस जगह पे बैठने वाले हैं। so you better stand अच्छा है कि आप खड़े हो जाइए with your Bible. आपकी बाइबल के साथ। Turn with me to 2 Philippians. चलिए मेरे साथ में देखेंगे फिलिप्पी की किताब। Let us read from verse 5 to 11. चलिए हम देखेंगे फिलिप्पी की किताब से हम पढ़ेंगे 5 से 11 तक। We will all read together. हम इकट्ठा मिलके हम पढ़ेंगे। If you down there, Khasi, Garo, you can read in your own dialect, in your own language. सभी We लोग here, अपने भाषा में whatever पढ़िए। language we speak, we can read in our own respective languages. चलिए हम अपने अपने भाषा में, जिसको भी जो भाषा पढ़ते हैं वो भाषा में पढ़े। Philippians chapter 2. फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय का We'll read verses 5 to 11. 5 से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। Are you ready? आप तैयार हैं? Are you ready? तैयार हैं आप? Okay. We start from verse 5. 1, 2, 3. Let the जैसा same मसीह यीशु का attitude स्वभाव and था purpose वैसा ही and तुम्हारा humble भी mind स्वभाव हो, be in जिसने you, परमेश्वर which का was स्वरूप in में होकर भी Christ. परमेश्वर के तुल्य Let him होने be your को example अपने वश in में रखने की humility, वस्तु ना समझा, who वरन अपने although आप being को essentially ऐसा सुन्ना one कर with दिया God, और दास and in का the रूप form of धारण God, किया और मनुष्यों के possessing the समानता में हो fullness गया of the और मनुष्यों के attributes which रूप make में God प्रकट God, होकर अपने आप did को not दीन think किया, this यहाँ तक equality कि आज्ञाकारी with God राम was a की thing to मृत्यु, be हाँ eagerly क्रूस की grasped मृत्यु भी or सह ली। retained. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति But महान भी stripped किया himself और उसको of वो all नाम दिया privileges जो सब नामों and से rightful श्रेष्ठ है, dignity, कि जो so स्वर्ग as में to और assume पृथ्वी पर the और guise पृथ्वी of a के नीचे servant, हैं, slave. वे सब यीशु In मसीह that के नाम पर he घुटना became टेकें like men और and परमेश्वर was born पिता a की human महिमा being. के लिए हर एक And जीव after अंगीकार he कर had ले appeared कि in यीशु human मसीह ही form, प्रभु है। He abased and humbled himself still further and carried his obedience to the extreme of death, even the death on the cross. You finish up to 11. So, okay. Okay, now verse 9. Verse 9. Therefore, because he stooped so low, God, not the prime minister, not the president, not the pastor. Who? God. Therefore, God has highly exalted him and has freely bestowed on him the name that is above every name. Verse 10. That at the name of Jesus, every knee should and must bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue, frankly, I'm reading from Amplified, and every tongue frankly and openly confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. You may be seated. अब बैठ सकते हो आप। Very quickly. From these 7 verses, ये जो 7 वचन को मैंने पढ़ा है अभी, we will study a little bit about Jesus, तो इन वचनों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, which Paul said, follow me, और जिसको ये पौलुस ने कहा मेरे पीछे चलो, because I follow Christ. उसने कहा कि क्योंकि मैं भी यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। Number 1, we will see. सबसे पहला देखेंगे हम, Number 1, we will see the first point, सबसे पहला पॉइंट को हम देखेंगे, the greatness of Jesus Christ. और यीशु मसीह के महानता को हम देखेंगे हम, The greatness of Jesus Christ. यीशु मसीह के महानता को हम देखेंगे If you हम। turn with me to the Bible in the book of Genesis, chapter 1, verse 1. अगर मेरे साथ आप बाइबल में आप देखते हैं उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय का पहला वचन, The first chapter, the first book in the Bible, and the first verse. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. बाइबल कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। And if you
read down that chapter, the whole chapter, we will see how God created the heavens and the earth. और Everything. उस चैप्टर का और आगे और भी वचनों को आप जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे किस तरह परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया है. How God created the sun, the moon, the stars. परमेश्वर ने कैसे कहता है सूरज, चांद और चंद्रमा सब कुछ को प्रभु ने कैसे The बनाया है. mountains, the valleys. कहता पहाड़ पर्वतों को प्रभु ने कैसे बनाया है, Everything. कैसे प्रभु ने बनाया You है. see God created. आप देखते हो कि परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ प्रभु ने बनाया है. But let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, the beginning for many years after I have accepted the Lord, और शुरुआत में जबकि मैं यीशु मसीह को अपनाने के बाद में I thought it was God the Father who created the universe. मैं ये सोच रहा था कि ये परमेश्वर पिता है जो जिसने सब कुछ कहता है कि सृष्टि किया इस पृथ्वी पर. But it was not God the Father. लेकिन ये परमेश्वर पिता नहीं है. God the Father has given the authority to his son. परमेश्वर पिता ने जो है परमेश्वर पुत्र को अधिकार को दिया है. It was Jesus Christ ये यीशु मसीह है who created the whole heaven and earth. और यीशु मसीह है जो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी It को was बनाया है. Jesus Christ वो यीशु मसीह है who created you and me. और जिसने आपको और मुझे बनाया It है. was Jesus Christ ये यीशु मसीह है who created the sun, the moon, the stars and everything. और यीशु मसीह सब कुछ को यीशु मसीह ने बनाया है. And listen what the Bible says. और सुनिए बाइबल क्या कहती है. You go with me to the gospel according to St. John chapter 1 verse 1. और मेरे साथ देखिए पहला यूहन्ना Let us किताब read. एक अध्याय का पहला वचन से If लेकर you have तीसरा your Bible, वचन. you can read with me. अगर If आपके you पास- don't have, you can just write down on your notebooks. अगर आपके पास बाइबल है मेरे साथ पढ़ सकते हैं, नहीं है तो बाइबल बस लिख लीजिए, आप पढ़ लेना. Listen. यूहन्ना The किताब Bible says, in the beginning, before all time was the Word. That Word was Christ. And the Word was with God. And the Word was God. हमें कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. Verse 2, He was present originally with God. हमें कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था. And verse 3 says, तीसरा वचन कहता है all things were made and came into existence through Him, through Jesus Christ. हमें कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा. And without Him was not even one thing made that has come into being. और उसके बिना कुछ भी चीज सृष्टि नहीं हुआ. So now we can ask, then who created the heavens and the earth? अभी आप सवाल पूछ सकते हैं कि किसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है. It's not God the Father. ये परमेश्वर पिता नहीं है. God the Father has given that authority to His Son, Jesus Christ. परमेश्वर पिता ने जो है परमेश्वर पुत्र को अधिकार को दिया है. Jesus created everything. और We यीशु see मसीह ने and सब कुछ things that बनाया we है. cannot see. और जो चीज हमें दिखाई देता है, जो चीज हमें In दिखाई नहीं देता. Colossians chapter 1 verse 16. कोलोसी किताब एक अध्याय का 16 वचन कहता है. Colossians chapter 1 verse 16. एक अध्याय का 16 वचन कहता है For it was in Him that all things were created. This is about Jesus. For it was in Him that all things were created in heaven and on earth, things seen and things unseen, whether thrones, dominions, rulers, or authorities. All things were created and exist through Him, Jesus Christ, Policy- by His service. कोलोसी किताब And 1 का 16 in में Him कहता है and for Him. क्योंकि उसी में सारी वस्तु को सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए ही सृजी गई है. Even the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य में भी कहता है, we can see there, उस जगह पे हम देख सकते chapter हैं 4 verse 11. 4 का 11 में This is about Jesus. ये यीशु मसीह के विषय में कहता है. What does the Bible say? बाइबल क्या कहता है? Worthy are you, our Lord and God, to receive the glory and the honor and dominion. Why? For you created all things,
You created all things. By your will, they were brought into being and were created. मिस्ता से कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे चीज सीजा गया है और उसी के लिए और उसी के द्वारा It was Jesus Christ ये यीशु मसीह है who created everything. और जिसने सारे चीजों को सृष्टि किया है He holds everything in his hand. और सब कुछ अपने हाथों में रखता है वो Jesus Christ. यीशु मसीह। John, the disciple of Jesus, when he was there in that island of Patmos, और यीशु मसीह का चेला जो यूहन्ना, he saw the glory of Jesus by revelation. और उसने प्रकाशन में प्रभु के उस महिमा को देखा है। This is how he wrote in the book of Revelation, उसने ये लिखा है प्रकाशित वाक्य में chapter 19. 19 अध्याय का, We'll start to read from verse 11 onwards. और 13 से आगे आप पढ़ते हो। Listen. सुनिए। After that, I saw heaven open, and behold, a white horse appeared. The one who was riding it is called Faithful and True. With justice, he judges and wages wars. अब फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय करता है और लड़ाई करता है। And verse 12, his eyes blaze like a flame of fire, and on his head are many kingly crowns, and he has a title written on which he alone knows, he alone can understand. और उसके आंखें आग की जलवा है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है और उसका नाम लिखा है कि जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। Verse 13, he is dressed in a robe dipped in blood. The title by which he is called the Word of God. Remember, in the beginning was the Word. Who created the heavens and the earth? Who created you and me? It was Jesus Christ. And who died for you and me? और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। याद करना, हमने कहा था कि आदि में वचन था, ये वचन है। कौन हमारे लिए मरा? यीशु मसीह है। And verse 16, let me jump to verse 16. We are here leaders. Okay, we are not tired to read the Bible. चलिए 16 वचन को Verse हम पढ़ते 16, हैं। and on his robe and on his thigh, he has this name, title written, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. 16 में कहता है और उसके वस्त्र और उसके झाग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। And in that same book of Revelation, और उसी प्रकाशित वाक्य में in the last chapter, और अंतिम चैप्टर में Jesus himself proclaimed. और यीशु मसीह ने इस बात को ऐलान किया है। He said, I am the Alpha and the Omega. उसने कहा मैं ही अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, I am the beginning and the end. मैं ही पहला हूं, मैं ही कहता अंत हूं। That is the greatness of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की महानता है। Second point, because of time. और दूसरा पॉइंट कि समय के कारण, Though he was so great, जबकि वो इतना महान था, he was so powerful. He's still powerful. और इतना सामर्थ्य है, आज भी सामर्थ्य है वो, King of kings and Lord of lords. और राजाओं का राजा, प्रभु का The प्रभु, creator of the whole universe. और सारा सृष्टि करता। He holds the sun, the moon, the galaxies, billions of stars in the hollow of his hand. और सब कुछ कहता है कि अपने हाथों में ही रखता है। Second point, दूसरा पॉइंट, we see the humility of Jesus Christ. और दूसरा स्वभाव को हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में, नम्रता को हम देखते हैं। The humility of Jesus Christ. यीशु मसीह की नम्रता। When Adam and Eve sinned against God, जिस समय आदम और हवा ने प्रभु के विरोध में पाप किया, when Adam and Eve sinned against God, जिस समय आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, God had to kill that innocent animal.
परमेश्वर को कहता है कि एक मासूम जानवर को मारना था, shed that blood, the Uska- blood of that animal. उस जानवर का लहू को बहाना था, Take the skin of that animal और उसके बाद कहता उस जानवर का कहता चमड़ा को लेना था to cover the nakedness and the shame of Adam and Eve. और आदम और हवा का जो नंगापन था उसको ढाकने के लिए उस जानवर का चमड़ा को इस्तेमाल करना पड़ा, Because Jesus was there from the beginning. क्योंकि यीशु मसीह जो शुरुआत से उस जगह पे था। I believe Jesus saw everything. मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने सब कुछ देखा होगा, What God did to that animal. और प्रभु ने कैसे किया उस पशु के साथ। The time came और एक समय आया when God said to Jesus परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु से कहा to come to this world, इस संसार में आने के लिए, and at the end to die that painful death on the cross. और उसको ये बोला गया कि इस संसार में आकर वो दर्दनाक मौत को सहना था। Jesus did not argue with God. और हम ये नहीं देखते कि यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर के साथ में किसी प्रकार का वाद विवाद किया होगा। He did not argue. वो अपने पिता परमेश्वर के साथ किसी प्रकार का झगड़ा नहीं किया। He did not say, Daddy or Father, ये उसने ये नहीं कहा हे पिता हे परमेश्वर, why can't we have a talk? क्यों नहीं हम इस विषय में बातचीत करें, Or you can change your mind. या तू अपना मन को बदल ले। Jesus, though he was God, the Bible says, जबकि यीशु मसीह कहता है कि प्रभु है, जो बाइबल हमसे कहता है, he has all the attributes which made God God. और कहता हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रभु तो है प्रभु। He could claim he has the ability, the capacity to say, to rebel against God. मान लीजिए उसके पास में सारा अधिकार भी था, उसके पास सामर्थ भी था कि परमेश्वर पिता के विरोध में खड़ा होता, Like Lucifer. जिस तरह लूसीफर ने किया है। But he chose to humble. लेकिन उसने यीशु मसीह ने क्या चुना? यीशु मसीह ने कहता चुना है अपने आप को नम्र करने के लिए। He chose to obey. उसने ये चुना कि परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी होने के लिए। When God the Father told him that he has to come to this world, जिस समय पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहा कि तू यीशु तुझे आना होगा इस संसार में, and at the end he will have to die that painful death upon the cross. और अंत में कहता है कि एक दर्दनाक मत दुख भरा है, कहता बहुत ज्यादा कहता है कि दर्द वाला मृत्यु को भी सहना होगा। He did not say a word. यीशु मसीह ने पलटकर अपने पिता परमेश्वर से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया। He did not go to the angels to get some sympathy. और यीशु मसीह जो स्वर्गीय दूतों के पास जाकर किसी तरह से बातचीत नहीं किया ताकि उसके ऊपर में तरस खाए। He did not say it to his father. और यीशु मसीह अपने पिता के पास नहीं जाकर ये नहीं कहा, He did not say it to the father. वो पिता से जाकर ये नहीं कहा, Father, पिता if you love the world so much, अगर आप संसार से इतना ज्यादा प्यार करते हो, why don't you go and die by yourself? क्यों नहीं कि आप जाकर खुद ब खुद आप मर जाओ? No, ऐसा नहीं बोला। he just obeyed. यीशु ने क्या किया? अपने परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी बात को माना है। And remember the Bible says, और याद कीजिए बाइबल क्या कहती है, he was one with God. वो परमेश्वर के साथ था। He has the fullness and the attributes which make God God. और जो यीशु मसीह के पास में सब कुछ था, काबिलियत था कि वो परमेश्वर पुत्र है वो। But Jesus humbled himself. फिर भी इन सारे चीजों के बावजूद भी यीशु मसीह ने ये चुना अपने आप को नम्र करने के लिए। Jesus was not craving for authority and position and titles. हम देखते हैं कहता यीशु मसीह जगह पे किसी प्रकार का पद को पाने के लिए सीखा, कहता वो अपने सृष्टि नहीं किया। Chose to obey. लेकिन यीशु ने क्या चुना? उसने ये चुना कि यीशु मसीह किसी प्रकार का पद को नहीं चुना, किसी प्रकार अधिकार को नहीं चुना, बल्कि उस चुना है अपने आप को नम्र करने के लिए, To humble. अपने आप को नम्र करने के लिए चुना है। This is one problem Jesus faced even with his own disciples. और अब जानते यही एक समस्या जो यीशु मसीह जो है अपने चेलाओं के साथ भी ये समस्या पाया है। We are leaders. हम सभी लोग लीडर्स हैं। I'm talking to the leaders. हम आज के दिन में सभी लीडर से बातें कर रहा हूं। You know, one of the problems that Jesus
hard to solve perhaps from time to time. आप जानते हैं एक समस्या जो यीशु मसीह जो कुछ कुछ समयों के बाद में उस समस्या को सुलझाना पड़ता था, Because the disciples, उसका चेलाओं का समस्या। they were fighting among themselves. वो चेलाओं जो आपस में लड़ते थे, They were arguing among themselves. आपस में बात विवाद करते थे, Who is the greatest? वो झगड़ते थे, Who is the greatest from among us? वो झगड़ते थे, कहते हम में से कहता हम बड़ा, Who हम is में the से बड़ा कौन greatest है, from among us? हम में से सबसे बड़ा कौन होगा। We read from the Bible. आप बाइबल में से पढ़िए, In Luke chapter 22 verse 24. आप लूका किताब 22 का 24 को आप देखिए, Let me read. मैं आपके लिए पढ़ूंगा। There was a strife among themselves. हाँ, उनमें कहता है कि ये बात विवाद हुआ। And it says also, now, another translation says, now an eager contention arose among them, among the disciples. या मान लीजिए उनके पास में एक चाहत हुआ कि है ना, कहता है एक चाहत पैदा हुआ कि उनमें से एक बड़ा कौन होगा, As to which of them was considered and reputed to be the greatest. कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। Who is the greatest among us? कि हम चेलों में से कहता बड़ा कौन है। Perhaps Peter he was pushing John, I'm greater than you. मान लीजिए कहता पत्र जो यूहन्ना को धक्का देता कि ये कहता मैं तुमसे बड़ा हूँ, And John was pushing James that, I know I'm greater than you. यूहन्ना शायद याकूब को कहता मैं तुमसे बड़ा हूँ। When they could not solve that problem, they said, okay, let's go to our master. Let's go to Jesus. और जो आपस में कहता है समस्या को सुलझा नहीं पाया, उन्होंने कहा चलो यीशु मसीह के पास जाते हैं। And Jesus asked them, why is this argument? तो यीशु मसीह से उनसे पूछा कि किस कारण ये तुम्हारे वाद विवाद हो रहा, झगड़ा क्या कारण है। They said, no, Lord, Master, Rabbi, we want to know who is the greatest from among us. तो उसने उनसे कहा कि है ना, चेले लोगों ने यीशु से कहा कि हे रबी हम जानना चाहते कि कहता हम चेलों में से बड़ा कौन है। They did not realize in front of whom they were arguing about their position. Shame on them. कहता उनको इस बात को मैं एहसास ही नहीं हुआ कि किसके सामने कहता है कि उस बात को लेकर झगड़ा कर रहा है, बड़ा कौन है। This is the problem with many churches today. तो आज के दिन यही समस्या बहुत सारे कलीसिया में भी है। We all want to be leaders. हम सभी लोग कहता है कि बड़ा बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। Who am I? मैं कौन हूँ, Who am I? मैं कौन हूँ। Or perhaps even there are some from among us, we already had that in mind. What apostle and the leadership will do to me this time round. In this leaders meeting, will they appoint me as leaders? Will they put me as elder? Will they put me as a pastor or whatever? Let me tell you, if we have that spirit, it is not from God. It is from another world. From another world. That means, you know. तो अगर मान लीजिए जगह पे हम कुछ लोग हैं, जगह पे या हमारे मन में ये विचार आ रहा, सोच रहा है कि इस बार लीडरशिप मीटिंग में हमें किस प्रकार का पद मिलने वाला, क्या हमें कोई पद दिया जाएगा या नहीं, है ना। मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकार का सोच के साथ अभी जगह पे आए, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं, बल्कि आप समझ लीजिए कौन सा आत्मा आपसे बातें कर रहा है। Are you with me? अब मेरे साथ है, Are you with me? मेरे साथ है। Who created the whole universe? सारा सृष्टिकर्ता कौन है। Who holds the sun, the moon and the galaxies, the billion of stars in the hollow of his hands? कौन सूरज चंद्रमा आकाश पृथ्वी सब कुछ को कहता है, जितना भी तारागण है कौन संभालता है, कौन पकड़ के रखा है। But he chose to humble. सोचिए वो जो सारा चीजों को कहता है कि आकाश हर कहता है, तारागणों को, सूरज चंद्रमा सभी को कहता है, वो अपने हाथों में पकड़ा है, लेकिन उसने फिर भी ये चुना अपने आप को नम्र करने के लिए। He has all the attributes which make God God. अब जानते उसके पास सभी काबिलियतें सब कुछ है, कहता वो प्रभु ही होने के लिए। But he chose to humble. लेकिन फिर भी उसने क्या चुना, अपने आप को नम्र करने के लिए। Please forgive me, gentlemen and gentle ladies. मुझे माफ करना सारे respectable people, please forgive me. How many of us want to be like the devil? हम में से कितने लोग है ना शैतान की तरह बनना चाहते हैं। None. I know. मैं जानता हूं कोई नहीं चाहेगा। How many of us want to be like Jesus? हम में से कितने लोग यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं। Yes. But please forgive me.
ये मुझे माफ Don't करना, get hurt. चोट नहीं लगना चाहिए आपको. Yes, we don't want to be like the devil. We want to be like Jesus. But many times, our action, our reaction, our ambition, they prove that we are more lenient to the devil than to Jesus. हाँ, ये बात तो Are you सही with है me, church? ना, ये बात तो सही है. जैसे कि आपने कहा कि आपने शैतान की तरह बनना नहीं चाहते, आप प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं. लेकिन काफी बार जो कहता है हमारा स्वभाव जो है, हमारा चरित्र जो ऐसा, हमारा काम ऐसा हरकत हम करते हैं, उस हरकत से पता चलता है कि आप ज्यादातर किसकी ओर है, यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं या शैतान की तरह. So leaders, इसी कारण सभी लीडर्स में कहना चाहता no हूँ, matter who we are, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन हैं, no matter what we are, हम कौन हैं, no matter what position we hold in the government, in the society, even in the church. कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है संसार में. संसार कहता है कि सरकार में आप कौन हैं या चर्च में आप क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Let us humble, 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 and humble. चलिए हम अपने आप को और नम्र करें और नम्र करें, नम्र करें प्रभु यीशु मसीह की तरह, Like Jesus. यीशु मसीह की तरह. I can't, my human mind cannot fathom मेरा कहता है ये इंसानिया है ना, इंसान का सोच से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. the degree of the humility of Jesus. तो यीशु मसीह अपने आप को कितना ज्यादा अपने आप को नम्र किया है, कितना ज्यादा नम्र किया है. My human mind cannot fathom मेरा ये मन कहता है, ये सोच विचार से भी कहता है the काफी दूर है. degree of the humility of Jesus. यीशु मसीह अपने आप को कितना ज्यादा नम्र किया है. Can you imagine the creator of the whole universe? अब इस बात को क्या सोच सकते हैं कि कहता है कि संसार का सृष्टिकर्ता, Before the beginning of everything, he was there. कहते हैं सारे चीजों का शुरुआत से पहले ही वो था. Now when he was born in the house of Joseph and Mary, और जबकि कहता है जोसेफ और मरियम के घर में उसका जन्म हुआ, the Bible says और बाइबल हमसे ये कहती है, he submit unto them. और बाइबल ये कहती है कि उसने अपने माता पिता के आगे में अपने आप को नम्र कर दिया, सबमिट कर दिया है, अधीन कर दिया है. Who is this person who submit to Joseph and Mary, the creator who created them? Are you with me, church? Are you with me, leaders? Who is this? अब सोचिए, कहता है कि ये यीशु मसीह है ना, जो कि सृष्टि करता है, और वो यीशु मसीह अपने आप को कहता जोसेफ और मरियम के अधीनता में कहता अपने आप को सबमिट कर दिया है. वो कौन है? He did not violate the rules. और उसने किसी प्रकार का कहता है कि कानून वगैरह व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ा He did है, not argue with them. और उनके साथ किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया. He did not tell to his earthly parents, who are you? Who do you think you are? You do not know who am I? I created you. No. Are you with me? और यीशु मसीह जो अपने माँ He simply submitted. He simply humbled himself. और यीशु मसीह जो है कहता मरियम और जोसेफ के आगे, उसके माता पिता के सांसारिक माता पिता के आगे में जाकर ये नहीं कहा, झगड़ा नहीं किया, आप नहीं जानते मैं कौन हूं, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, अपने आप को उनकी अधीनता में रखा है. Last point. अंतिम वाला पॉइंट. Number one, the greatness of Jesus. सबसे पहला जो यीशु मसीह की महानता था, Number two, the humility of Jesus. और दूसरा यीशु मसीह की नम्रता, And number three, और तीसरा the obedience of Jesus. और यीशु मसीह का आज्ञाकारिता. The total obedience and the total submission of Jesus. और यीशु मसीह का आज्ञाकारिता और यीशु मसीह का किस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को सबमिट किया या अपने आप को अधीन किया है. What does it mean to obey? आज्ञाकारी का अर्थ क्या है? What does it mean to obey? आज्ञाकारी का मतलब क्या है? Thank you. What does it mean to obey? Let me give you, a simple example. चलिए एक साधारण से आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं. Obedience is this. आज्ञाकारी ये है. Suppose now Pastor Manoranjan Barua, he is all set to go tomorrow to Punjab. और मान लीजिए पास्टर मनोरंजन बरुआ को कहता है कि बोला जाता है कि पंजाब चाहिए.
told him, और मैं उनसे कहता हूँ, "We are going to Punjab." क्या आप पंजाब जा रहे हो? "Oh yes, even I'm going to Punjab. Will you go with me?" और वो कहते हैं कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ He जाओगे? said, yes, Pastor or Apostle, I will go with you. हाँ वो कहते हैं हाँ मैं जाऊंगा. That is not obedience. वो आज्ञाकारी नहीं है. But obedience is this. आज्ञाकारी ये है. He's all set to go to Punjab. और जो कहता है उनको बोला गया जाने के लिए, Tomorrow all set. कहता है कल जाना है. But I told him, जैसे कल जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ, tomorrow you go with me to Bangalore. लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि कल आप कहता पंजाब नहीं बल्कि मेरे साथ बेंगलोर जा रहे हो आप. Does not argue with me. वो मेरे साथ कहते किसी पर झगड़ा नहीं करते. Joyfully he said, okay, I'm going with you. वो to आनंद Bangalore. के साथ कहते हैं हाँ, आनंद के साथ कहते हैं चलो मैं जाता हूँ आपके साथ. That is obedience. वो आज्ञाकारी हैं. Obedience is you comply with the will of others joyfully. आज्ञाकारी है कि जो आपका इच्छा को मार के दूसरा के इच्छा आधा दूसरा के मर्जी को आनंद के साथ रिसीव करना. Therefore we see here the obedience of Jesus. इस जगह पे हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह के आज्ञाकारी को हम देखते Total हैं. obedience. पूरी तरह से आज्ञाकारी को हम The देखते हैं. total submission of Jesus. और यीशु मसीह किस तरह से अपने आप को अधीन किया है परमेश्वर के आगे. Jesus, जब यीशु his time has come. उसके लिए वो समय आ चुका था, And he has to fulfill the will of his Father. वो समय आ चुका था कि परमेश्वर पिता का इच्छा को पूरा करना. He has to fulfill the plan for which his Father has sent him for. वो समय आ चुका था कि जिस मकसद के साथ परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा, उस प्लान को, उस योजना को पूरा करने का. He went to the Garden of Gethsemane. अब वो जो कहता है गार्डन में, कहता गत्सेमनी का गार्डन में गया वो, There और उस जगह पे प्रार्थना करने लगा. and as he was praying, और जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, the Bible says he was sweating बाइबल कहता है कि वो पूरा कहता है कि वो पसीना बहने लगा. in the form of blood. वो पसीना जो मानो लहू में बदल कर, I believe मैं विश्वास करता हूँ at that time when Jesus was in the Garden of Gethsemane, वो समय जो यीशु मसीह जो गत्सेमनी का गार्डन बगीचा पे था, he could recollect his memory that now my time has come that I will have to die like that innocent animal when he was killed and his blood was shed and his skin was taken away to cover the shame and the nakedness of Adam and Eve. और जब यीशु मसीह भी कहता है पसीना जो लहू में परिवर्तन होकर बहने लगा, उस समय यीशु मसीह ये सारा बातों को याद करने लगा कि किस मेरे लिए ये समय आ चुका है कि उस जानवर की तरह जो कि कहता है ना, आदम और हमारे जिसने पाप किया था और उसको एक पशु को मारना पड़ा और उसका लहू बहाना पड़ा, और उसी तरह से उसके कहता यीशु मसीह का लहू भी जो है बहाया जाएगा ताकि उनका लोगों के पापों को मिटाने के लिए. When Jesus was there in the Garden of Gethsemane, जब यीशु मसीह जो गेत्सेमनी के गार्डन पे था, I believe मैं विश्वास करता हूं he remembered every scripture that has been written concerning his suffering on the cross. उनको सारा उन वचनों को याद है जो उसके विषय में लिखा गया था. कहता किस तरह से उस दर्द है ना, उस दर्द भरा सफर या दर्द भरा यात्रा में होकर जाना पड़ेगा. Was the creator. क्योंकि वो कहता सृष्टि करता है वो, He has all the attributes उसके पास सब which काबिलियत make है. God God. जो कहता है प्रभु प्रभु बनाता है, He was there. And he was praying. कहता वो जो कहता है कि राजा है, Father, वो राजा है. और अब इस बात को भी हम जानते हैं, उस समय क्या वो कहता है, पुकारने लगा, हे पिता, if it is your will, अगर ये तेरा इच्छा है, let this cup pass away from me. अगर हो सके पिता परमेश्वर ये प्याला मुझसे दूर रहे, But not as I will, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, but as you will. लेकिन जैसा तू चाहता वैसा. Complete submission. वो पूरी तरह से अपना इच्छा को मारकर परमेश्वर, Complete obedience. अपना इच्छा को मारकर परमेश्वर पिता का इच्छा को लेने लगा. To the plan and the purpose God has sent him for.
ताकि जिस मकसद के साथ परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा है उस मकसद को पूरा करने के लिए। Died on the cross. यीशु मसीह क्रूस पर मरा। From the cross he cried out, अब कहता क्रूस पर वो चिल्लाया, पुकारा है, "It is finished." उसने कहा ये पूरा हो चुका है। Meaning, इसका अर्थ है, Father, पिता, I have totally finished what you have sent me for. पिता तूने जिस मकसद के साथ मुझे भेजा था उस मकसद को मैंने पूरा कर दिया है। Father, हे पिता, I have totally obeyed मैंने your will. मैं पूरी तरह से प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा पर अपने जीवन को समर्पित किया है। He died on the cross. क्रूस पर अपने जीवन कुर्बान किया है। He died on the cross. वो क्रूस पर मरा, Buried. वो दफनाया गया उसे। Leaders, are you awake? सारे लीडर्स जगा हुआ है, Are you awake, leaders? सारे लीडर जगा है। He died on the cross. वो क्रूस पर मरा, He was buried. उसे दफनाया गया। Let me tell you. और मैं कहना चाहता हूं आपसे, He depended in God the Father. He trusted in Him so much. वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था और प्रभु पर भरोसा किया उसने। Let me tell us, और हम सभी से कहना चाहते हैं, Jesus did not come out from the grave by Himself. और यीशु मसीह जो है अपने आप से कब्र से बाहर नहीं आया। Jesus यीशु did not come out from the grave by Himself. यीशु मसीह जो है कब्र में से अपने आप से बाहर नहीं आया। I thought if God would have left Him there, He'd still be there. मैं सोचता था कि अगर परमेश्वर उसको कब्र पे छोड़ देता तो अब आज के दिन में शायद कब्र पे ही होता। It was not Jesus by Himself came back from the grave. ये जो यीशु मसीह जो है अपने आप से ही कहता क्रूस से कब्र से बाहर नहीं आया। It was God the Father. ये परमेश्वर पिता है। He brought Him out of the grave. परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को कब्र में से बाहर निकाला। It was God the Father. ये परमेश्वर पिता हैं। Let us read with me from the Bible. चलिए हम बाइबल में से देखेंगे हम। I will read from the New Living Translation. It says like this. 1 Peter chapter 1 verse 3. पहला पत्रस 1:3 कहता है, All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again because God raised Jesus from the dead. आमीन। हमें कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया है और उसी ने परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया है। Came out from the grave. और कहता है बड़ी दया के साथ में प्रभु की दया के कारण हम और आप भी बचाए गए और कारण ये था कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया। God raised Him. परमेश्वर ने जिलाया है। He was here on earth for another 40 days. और उसके बाद जो यीशु मसीह और 40 दिन तक संसार पे था। He did not go to heaven by Himself. और यीशु जो है अपने आप से ही स्वर्ग में नहीं चला गया। Leaders, सारे लीडर्स लोग ध्यान सुनिए। Jesus trusted God so much. और यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता पर पूरी तरह से निर्भरता भरोसा किया है। Jesus trusted His Father so much. और यीशु मसीह जो है पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया। He did not go to heaven by Himself. और यीशु जो है अपने आप से स्वर्ग नहीं गया। It was God took Him. ये परमेश्वर ही था जिसने यीशु मसीह को उठाया और ले चला। How did I know that? आप पूछें कैसे मुझे पता? Read with me. चलिए हम देखते हैं Acts chapter 1 verse 9. प्रेरितों की किताब पहला अध्याय का 9वां वचन। Acts chapter 1 verse 9. प्रेरितों की किताब 1 अध्याय का 9वां वचन What does it say? क्या कहता है? It says like this. It was not long after he had said this, he was taken up. It did not say he went up. Are you with me? Are you with me, church leaders? हमारे साथ है? Say yes or no. आप मेरे साथ Are you है with या me? हाँ या ना? और हम ये देखते ये कहकर वो
उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनके आंखों से छिपा लिया। हम देखते ये कहता है कि देखते देखते उठा लिया। ये नहीं बोला कि यीशु मसीह अपने आप से चला गया, ऐसा नहीं बोला है। He was taken. उसे उठा लिया गया। Who took him? किसने उसको यीशु को उठाया? Someone stronger than him. है ना? God the Father. पिता परमेश्वर ने उठाया है। Are you with me? अब मेरे साथ हैं। He took him. उसने उसे उठाया। Son, it is time to come home. परमेश्वर पिता ने कहा, बेटा ये समय आ चुका है तुम्हारे लिए घर में आने का। God took him there. परमेश्वर ने उसको उठाया। Number 3. तीसरा पॉइंट जो है, Before Jesus went to heaven, और यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाने से पहले many times he spoke about his second coming. और यीशु मसीह काफी बार उसने कहा कि उसके दूसरा आगमन के विषय में, दोबारा आने के विषय Many में। times he said, I am coming quickly. और यीशु मसीह ने काफी बार ये बोला कि मैं जल्द से जल्द आने वाला हूं, I am coming soon. मैं जल्द से जल्द आने वाला हूं। But till today, he has not come yet. लेकिन आज के दिन तक यीशु नहीं आया। Therefore, there are people who say he's a fraud. और ऐसे लोग थे, ऐसे कहा कि यीशु मसीह के विषय में कि वो झूठा है, They accuse Jesus. और He's उसने a यीशु liar. मसीह के पर दोष लगाया। He is a liar. उसने कहा कि यीशु मसीह झूठा है। Jesus is not bothered. यीशु मसीह उन बातों के बारे में परवाह नहीं किया। Why? क्यों? Trusted in the timing of his Father. यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का समय पर पूरी तरह से भरोसा किया। Therefore, one time when the disciples gathered around him, they asked, when will you come back? He said, I don't know. एक बार ऐसा समय था, Even the angels, the holy angels in heaven, they don't know. एक समय था कि Only my Father knows. Are you with me? Come on, church. एक समय था कि सारा का सारा जो कहता, चेले लोगों ने मिलकर यीशु मसीह को घेर के रखा और उसने कहा कि दोबारा कब आएगा तू? यीशु ने कहा मुझे नहीं पता। For 2,000 years plus, he is still waiting for the word from his Father because he trusted wholly अब जानते हैं अभी 2000 wisdom and the timing of his Father. अब जानते हैं अभी 2000 साल से ऊपर हो चुका है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता का उनका वचन का इंतजार कर रहा है कि कब वो आएगा। मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह आज के दिन तक भी इंतजार कर रहा है परमेश्वर पिता उसको कब भेजेगा, क्योंकि उस पर भरोसा करता है। Paul said, पौलुस ने कहा, follow me पौलुस ने कहा मेरे पीछे चलो as I follow Christ. जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं। We have seen the greatness of Jesus. हमने यीशु मसीह के महानता को देखा, We have seen the humility of Jesus. और यीशु मसीह के नम्रता के विषय में देखा, We have seen the complete obedience of और Jesus. यीशु मसीह के संपूर्ण आज्ञाकारी को हमने देखा। As leaders, और हम एक लीडर होने के नाते, Bible says, और बाइबल हमसे ये कहती है, we have read before, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है, Philippians 2:5. फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय का 5वां वचन, Paul said like this, पौलुस ये कहता है, let the same attitude and purpose and humble mind be in you which was in Christ Jesus. Let him be your example in humility. फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय का 5वां वचन में कहता है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Are you with me? अब मेरे साथ है, Are you with me? अब मेरे साथ है। In this generation, we seldom see humble people. और आज की पीढ़ी में हम बहुत मुश्किल से लोगों को देखते हैं जो आज्ञाकारी होकर जीवन जीते हैं, Craving for power. और जो कहता है, जो ऐसे लोग नहीं जो कहता है कि सामर्थ के पीछे में, अधिकार के पाने Craving के, for titles. है ना, जो नाम के पीछे, Craving for authority. अधिकार के पीछे भागने वाले लोग।
For Paul said, इसी कारण पौलुस ये कहता है, let him be your example चलिए यीशु मसीह कहता है कि एक अच्छा उदाहरण बने तुम्हारे लिए in humility. आज्ञाकारी में। Very quickly. क्या तो उसने कहा कि आज्ञाकारी के विषय में। I hope we all know that Apostle Paul was the wisest man in his time. और हम जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी जानते हैं ये अपोस्तल पौल जो है बहुत ज्ञानी व्यक्ति था उसके समय में। After he has found Jesus, जब ये अपोस्तल पौल ने यीशु मसीह को पाया, he was considering about his name. वो जो उस नाम के बारे में सोच रहा था, He was considering about his fame. उसके नाम, हाँ कहता उसका इज्जत के बारे He में, was thinking about his degree. और उसके जो उसके पास में जिस प्रकार का अधिकार था, He was considering about his position and his title. और उसका कितना बड़ा पद था उसका, He was considering about his glory and his prestige. और कितना ज्यादा इज्जतदार व्यक्ति था वो, His wealth और उसका धन संपत्ति and everything. और सब कुछ। But eventually, है ना, अंत में said, उसने ये कहा, listen, सुनिए, eventually, अंत में पौलुस ये कहता है, after he had considered even the persecution he will have to face for Jesus. और जबकि उस बात को मान लिया कि यीशु मसीह के लिए कितना ज्यादा तारना This उसको mighty होगा, powerful man, Paul, वो इतना सामर्थ्य व्यक्ति जो पौलुस, wisest man, ज्ञानी व्यक्ति, after he has considered everything, वो सब कुछ को जो मान लेने के बाद, this is what he said. और उन सारी बातों को मान लेने के बाद Oh, उसने ये कहा, I love this verse. मुझे ये वचन अच्छा लगता है, I love this verse. मुझे ये वचन अच्छा लगता है। Philippians chapter 3 verse 8. फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय का 8वां वचन, Paul said, yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Christ Jesus my Lord. My God. He said, I have considered everything else, counting it all as garbage, counting it all as dung. Why? That I may gain Christ. पौलुस ये कहता, जब यीशु मसीह के उसको पा लिया, यीशु मसीह के जान लिया, उसके बाद वो कहता उसका जो कुछ भी उसके पास था, धन संपत्ति नाम इज्जत जो भी था, उन सारे चीजों को उसने कूड़ा समझा। क्यों? यीशु मसीह को उसने पाया है। I could imagine, I could think that Paul would have been the very powerful man at his time. मैं सोचता हूँ कि उस समय जो पौलुस के समय में पौलुस बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था, वो ताकतवर व्यक्ति था, Very famous person at his time. और उसके समय में काफी नामी व्यक्ति था वो, The wealthiest man at his time. और उसके समय में Because of the degrees and the knowledge that he had. और जिस प्रकार का ज्ञान था उसके पास में, Raised at the feet of Gamaliel. है ना, गमीलियन के कहता है कि चरणों में वो बड़ा हुआ। Paul was thinking about all these things, about the things the world can offer him. और पौलुस उन सारी चीजों के बारे में सोच सकता जो संसार उसको दे सकता था, But at the end, और अंत में he said, I count all of them as garbage. और उसने ये कहा, I count all of them dung when I compare Jesus. और उससे कहता उन सारे चीजों को कहता है कूड़ा समझता है ना, क्या कूड़ा समझता है। जब उसने यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु को जाना। Let me read again. मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा The same verse, Philippians 3:8. फिलिप्पी Yes, 3:8। everything else is worthless when compared with the priceless gain. What gain, man? What gain, Paul? Gain of knowing Christ. Oh my God. पौलुस ने क्या पाया, क्या कमाया? उसने यीशु मसीह को कमाया, उसने यीशु मसीह को जाना, पहचाना। Gain of knowing Christ, my Lord. तो यीशु मसीह के बारे में जाना उसने। I have considered everything else,
counting it all as garbage. जब उसने यीशु मसीह के बारे में जान लिया, उसके पास जो कुछ ज्ञान था, समझ था, धन संपत्ति नाम जो भी था, उन सभी चीजों को उसने क्या समझा? कूड़ा समझा। Counting it all dung. सब कुछ को कूड़ा समझा वो। Counting it all like gobar. है ना, जैसे कि उसने के For बारे what? किस लिए? For what? किस लिए उसने कहता है गोबर समझा बाकी सभी चीजों को? He said that I may gain Christ. ताकि मैं प्रभु को पा सकूं। Leaders, सभी लीडर्स लोग, let Christ be our example. चलिए यीशु मसीह हमारा एक नमूना हो, उदाहरण हो। Let Christ be our focus. चलिए हमारा ध्यान जो है यीशु मसीह की ओर हो। Let Christ be our trophy. तो यीशु मसीह ही हमारा इनाम हो। Let Christ be our glory. यीशु मसीह हमारा महिमा हो। Let Christ be our everything. ताकि यीशु मसीह सब कुछ, हमारा सब कुछ यीशु ही हो। Let Christ be our goal. यीशु मसीह कहता हमारा निशाना हो। Let Christ be our leader. यीशु मसीह हमारा अगुवा हो। Therefore Paul said, follow me इसी कारण पौलुस से कहता है मेरे पीछे चलो, as I follow Christ. जैसे मैं चलता हूं यीशु के पीछे। I hope that from this group of people मैं tonight, विश्वास करता हूं कि आज जितने भी लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं, we will rise up people who would say to our congregation, हम ऐसे follow me as I follow Christ. हम ऐसे अगुवाई होंगे जो हम कहेंगे मेरे पीछे चलो जैसे कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं। God knows everything about us. परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। God knows everything about us. परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। Remember I have said, अब याद कीजिए मैंने जो बोला है, even from the grave, Jesus did not come out by himself. याद- It was God the Father. याद कीजिए मैंने बोला कि यीशु मसीह कब्र से अपने आप से बाहर नहीं आया, बल्कि परमेश्वर पिता ने बाहर निकाला। He trusted, he depended in God. उसने परमेश्वर पिता पर भरोसा किया है और निर्भर भी किया है। Even when he went up, he did not go by himself. Someone took him. जो कहता स्वर्ग में उठा लिया गया, उस समय में यीशु मसीह अपने आप से नहीं गया, बल्कि किसी ने उठाया है। Wait. I imagine, I speculate. मैं सोचता हूं, I imagine Jesus could not wait any longer. He wanted to come to take his bride. But he's still there, waiting the command from God. अब जानते हैं कि यीशु मसीह इंतजार नहीं कर पा रहा होगा कि उसका कहता अपने दुल्हन को लेने के लिए, बेचैन है लेने के लिए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर पिता का हुक्म का इंतजार कर रहा है। He is misunderstood by people. और यीशु मसीह को जो काफी बार जो है गलत समझा गया। Why he said, I'm coming quickly, but why he's delayed? No problem, say to me whatever you want to say. I don't care. I obey my Father. है ना, काफी बार शायद लोगों ने ये बोला उसे झूठा है, क्योंकि उसने कब से बोल के रखा था कि वो आने वाला, जल्द से जल्द आने वाला है, लेकिन लोग उसके बारे में क्या कुछ करता है उसके बारे में परवाह नहीं करता, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है परमेश्वर पिता उसको कब भेजेगा। We'll close. और अभी हम खत्म करने पे हैं, We'll sing one song. और एक गीत गाकर हम मीटिंग सेवकाई को, आज के मीटिंग को हम खत्म करेंगे। I love this song. मुझे ये गीत बहुत पसंद है। Jesus, you are all I need. यीशु तू सब कुछ है मेरे लिए। Jesus, you are all I need. Quickly. Jesus, you are all I need. और यीशु जो मुझे सब कुछ जो मुझे चाहिए वो तू है। We will close. हम सेवकाई को खत्म करेंगे। Can we all stand together? क्या हम सभी लोग खड़े हो सकते हैं इकट्ठे? And as we are standing in the presence of the Holy God, और जबकि कहता है पवित्र परमेश्वर के आगे हम जबकि खड़े हैं अभी, let us pray quietly. चलिए हम धीरे धीरे प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, help me to follow your footsteps.
मुझे सहायता करना ताकि तेरे नक्शे कदम पे चल सकूं। help me to humble like you. प्रभु यीशु मसीह मुझे सहायता करना तेरी तरह मैं नम्र बन सकूं। Help me to obey like you. प्रभु तेरी तरह आज्ञाकारी बन सकूं। We will sing this song. Come on. हम ये गीत को गाएंगे हम। Jesus, you're all I need. You're all I need. Now I give my life to you alone. You are all. You are all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. Lord, you give yourself so I could live. You are all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. Now I give my life to you alone. You are all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Lord, you give yourself so I could live. You are all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Now I give my life to you alone. You are all I need. One more time. Jesus, you're all I need. Yes. Let us mean it. You're all Let this be our prayer. Jesus, you are all I need. ये गीत कहता है यीशु मुझे केवल तुझे ही चाहिए, तू ही चाहिए यीशु, तू मेरे लिए सब कुछ है। I could live. You are all I need. You're all I need. Before we close, खत्म करने से पहले the revival that came to Wales and swept almost the world, and it has come even here in India. The revival. ऐसा जागरण आया है जो कि सारा संसार को छुआ और कहता भारत देश में भी आया है। People said it was because of the prayer of one man, लोगों ने कहा एक इंसान का प्रेयर के कारण हुआ है, Evan Roberts. इवन रॉबर्ट के कारण। They said he prayed only very few lines वो कहते हैं कि उसने केवल कुछ ही लाइनों को प्रेयर किया है for almost 13 years. और 30 साल तक एक ही प्रेयर किया उसने। And the prayer was like this: प्रेयर इस प्रकार का था, Lord, bend me. प्रभु मुझे नम्र बना, Lord, bend me. प्रभु मुझे झुका। Let this be our prayer. चलिए हमारा भी यही प्रेयर रहे, प्रभु मुझे हमें Lord, झुका, bend us. प्रभु हमें और झुका। प्रभु परमेश्वर Help us to be humble. सहायता कर ताकि हम अपने आप को नम्र कर सके। प्रभु Help us to obey. प्रभु सहायता कर ताकि हम आज्ञाकारी हो सके। प्रभु No matter what happened to us, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कुछ होता हमारे साथ, we will humble. हम अपने आप को नम्र करेंगे, Humble. हम नम्र करेंगे। We'll just humble
प्रभु हम अपने आप को केवल नम्र ही करेंगे प्रभु, and obey and obey. अब प्रभु केवल आज्ञाकारी 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 होंगे Help प्रभु। us to obey our leaders. प्रभु सहायता करना ताकि हम अपने अगुवाई के अधीनता में रहे, आज्ञाकारी रहें। Help us to obey you, प्रभु सहायता करना हम तेरे आज्ञाकारी में रहें, so that we can tell to the congregation, ताकि हम अपने प्रभु अपने लोगों से कैसे विश्वासियों को कह सकें, follow me as I follow Christ. मेरे पीछे चलो जैसे कि मैंने यीशु मसीह के पीछे चला है। Bless your people, O God. प्रभु अपने लोगों को आशीष करना, प्रभु Bless your people. अपने लोगों को आशीष कर, Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। Amen. आमीन। Amen. Over